Hello, all the students. Welcome to XAT once again. My name is Anil Sir, and after the snap has got over, now I think all the students are going to focus on XAT only. So now, students, next 10 days are going to be very crucial for your XAT preparation. So 5th January, XAT is here, and 10 days, almost 10 days are left. And now you people have to brush up all your concepts according to XAT. And there is one section which is totally new, and that becomes business decision making. So this is new also, interesting also, and not so technical as well. So once you understand how we need to solve the questions, what approach we people have to keep in mind, I think students managing to get almost all the answers correct will be very much possible. Okay. So welcome all the students. Hi everyone. Yes. Hello Yuvraj. चलिए फटाफट स्टूडेंट्स एक बार चैट बॉक्स में लिख दो सो दैट आई कम टू नो दैट who have joined, and then we can start with the session. So in total 3 sets we are going to discuss today, 9 questions. And students ये जो questions हैं उनमें से कुछ PYQs भी हैं और कुछ नए questions भी हैं. Okay? चलिए और आने वाले दिनों में भी we will continue with this, and we will also take some sessions on VALR as well. So your verbal ability and reading comprehension, and which also includes a part of logical reasoning as well. Okay, the very first section of that. So even that, okay, we will take a few classes on that as well. So grammar also plays a very important role there, and you people should also understand how to solve poems as well. तो कुछ questions हमेशा poems पर भी based होते हैं. And जो reading comprehension ZAT में आता है, वो generally students CAT के मुकाबले थोड़ा सा कम लेंदी होता है, बट स्टिल द क्वेश्चंस आर मोर लॉजिकली इंक्लाइंड. ओके चलिए, सो ऑल द स्टूडेंट्स, या युवराज ने कुछ लिखा है. हाय रॉयल रोस्टर, हाय राघव, आई वांट टू इम्प्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल्स, योर वे ऑफ टॉकिंग इज एक्सीलेंट, प्लीज सजेस्ट सम टिप्स. ओके युवराज, देखो सबसे पहले तो ज़ैट पे फोकस कर लेते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पर बाद में बात करेंगे. And still, if you want to improve your communication skills, not exactly communication skills, but I would say the sessions, the course which we are going to launch for interview and VAT prep, I would say you should become the part of that. So by tomorrow, the launching will be done, and very soon, okay, you people will come to know what dates we are going to start with the course. So the moment you become the part of that, that's all about communication. That's all about how you carry yourself. I would definitely say that you should become the part of that course. Okay, done. Yes, hi Raghav. So really grateful to you. Have been doing great job for students snap. Okay, expecting 12 out of 15 in English. Okay Raghav. Okay, thank you very much for the kind words, and hope so कि आप सबको अच्छे calls मिल जाएं. और एक बार calls मिल गया ना किसी भी अच्छे B स्कूल का, let it be IIM, Symbiosis, whatever, उसे कन्वर्ट करवाने की पूरी जिम्मेदारी है. ओके, वो जो इंटरव्यू का जो पूरा कोर्स है, दैट विल इंश्योर दैट कि आपका वो कॉल कन्वर्ट हो जाए. और वो जो पूरा कोर्स है वो बहुत हेल्प करेगा आपको एक्चुअली अपने बारे में इतनी चीज़ें पता चलेगी जो हम खुद नहीं जानते. तो ये तो बहुत ही एक मेरा वंडरफुल कोर्स है. पर्सनली आई विल बी द ट्यूटर इन दैट. आई वुड से ऑल द स्टूडेंट्स उस कोर्स को जरूर ज्वाइन करना. चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं. हेलो सर, प्रिपेयरिंग फॉर ज़ैट, आई एम फाइंडिंग डिसीजन मेकिंग काइंड ऑफ टफ. आदिति देखो, डिसीजन मेकिंग पर मैंने 2 सेशन अभी लास्ट वीक लिए थे. टुडे वी आर गोइंग टू टेक द 3rd वन. आप ये सेशंस फॉलो करो विद इन 2-3 डेज. आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल बिकम कंफर्टेबल इन दिस टॉपिक. ओके, ये आसान है, टफ तो बिल्कुल नहीं है. देखो होता क्या, आउट ऑफ 21 क्वेश्चन पॉसिबली 1 सेट या कोई 3-4 क्वेश्चंस थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बट मेजरली अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होते हैं. स्टार्ट करते हैं. मैं जितना भी बोलूँगा उससे काम नहीं चलेगा, अपन क्वेश्चंस लेंगे तो पता चलेगा. बट बिफोर आई स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, इस 5 पॉइंट अप्रोच को मैं अपनी हर क्लास में प्रेजेंट कर रहा हूँ. एंड सारे स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट सेशन मैंने लिया था उसमें बहुत डिटेल से मैंने इसे डिस्कस भी किया था. हमेशा कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिसीजन मेकिंग लेनी हो, स्टूडेंट्स, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द इशू, एंड वॉट एवर सोल्यूशन यू पीपल आर प्रोवाइडिंग, यू विल हैव टू इंश्योर दैट इज इट एड्रेसिंग द रूट कॉज और नॉट. सेकेंड, कीप अ बैलेंस्ड अप्रोच. एक ऐसा अप्रोच जो बिल्कुल एक्सट्रीम ना हो, सभी स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखिए.
इसका मतलब है यू शुड गो फॉर ग्रेटर गुड। एंड देन एथिकली एंड वैल्यू वाइज एक आइडियल आंसर हमको मार्क करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एथिकली भी बिल्कुल एक्सट्रीम होना चाहिए, बट स्टिल आवर आंसर हैज टू अपहोल्ड एथिकल वैल्यूज। एंड फाइनली किसी भी ऑप्शन को मार्क करते समय यू पीपल हैव टू थिंक क्रिटिकली। हमेशा ये बेटर है कि डीमेरिट्स के बारे में पहले सोचो कि अगर मैं इस ऑप्शन को मार्क करता हूं तो उसका ड्रॉबैक क्या होगा। ओके, तो ये 5 स्टेप्स अगर अपन फॉलो करेंगे, आई एम कॉन्फिडेंट कि आपकी एक्यूरेसी बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं पहला सेट। Yes, all the students, this is the data given to us, and on the basis of this data, 3 questions will be there. So I want all the students आराम से एक बार इस डेटा को पढ़ो और फिर मैं आपको क्वेश्चंस पर लेकर आता हूं। Yes, I guess you people have heard about this particular case. Okay, दिसंबर 2 और 3 की रात 1984 यूनियन कार्बाइड ओके एंड भोपाल में जो बहुत ही बड़ा डिजास्टर था, मोर देन 10,000 पीपल दे डाइड। चलिए स्टूडेंट्स, so the paragraph talks about the chairman and the CEO of Union Carbide, Warren Anderson, had been arrested and released on bail by the Madhya Pradesh police in Bhopal on December 7, 1984. The arrest, which took place at the airport, assured Anderson would meet no harm by the Bhopal community. Anderson was taken to Union Carbide's house, after which he was released 6 hours later on $2,100 bail and flown out on a government plane. अब देखो स्टूडेंट्स, सरकारी प्लेन में उसको बाहर भेज दिया गया, तो इंस्टेड ऑफ नैबिंग हिम उसको एक्चुअली फ्ली करने में द गवर्नमेंट वाज असिस्टिंग। In 1987, the Indian government summoned Anderson, 8 other executives and 2 company affiliates with homicide charges to appear in Indian court. Union Carbide barked, saying the company is not under Indian jurisdiction. So beginning in 1991, the local authorities from Bhopal charged Anderson, who had retired in 1986, with manslaughter, a crime that carries a maximum penalty of 10 years in prison. Anderson has so far avoided an international arrest warrant and the US court's summons. He was declared a fugitive from justice by the Chief Judicial Magistrate of Bhopal on February 1, 1992, for failing to appear at the court hearings in a culpable homicide case in which he was named the chief defendant. Orders were passed to the government of India to press for an extradition from the United States. I guess सभी students को पता होगा what is the meaning of extradition. It's a kind of treaty basically. जैसे इंडिया का अगर किसी देश के साथ एक्सट्राडिशन ट्रीटी हो जाए, तो इंडिया से कोई भी क्रिमिनल अगर भागकर उस देश में जाता है तो उस देश की सरकार उसे पकड़कर वापस इंडिया को दे देगी। सो दिस काइंड ऑफ ट्रीटी इज नोन एज एक्सट्राडिशन ट्रीटी। तो प्रेस फॉर एन एक्सट्राडिशन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स विथ whom India had an extradition treaty in place. The Bhopal medical appeal believes that neither the American nor the Indian government seem interested in disturbing him with an extradition. A seemingly apathetic attitude from the US government, which has failed to pursue the case, has also led to strong protests in the past, most notably by Greenpeace. A plea by India's Central Bureau of Investigation to dilute the charges from culpable homicide to criminal negligence has since been dismissed by the Indian courts. The US Supreme Court refused to hear an appeal of the decision of the lower federal courts in October 93, meaning that victims of the Bhopal disaster could not seek damages in the US court. On the anniversary of the tragedy, effigies of Anderson and politicians are burnt. Anyway, students, आपको पूरा मामला समझ में आ गया। एंडरसन को भगा दिया। अब उसके बाद एंडरसन is actually trying to skip and avoid the judicial proceedings
both in India as well as America. एंड जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है ही नहीं, क्योंकि एंड इन फैक्ट इंडियन जो एजेंसीज हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस पर जो चार्जेस लगे हुए हैं उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की है. ओके, चलिए, कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, नाउ 3 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन इट, और ये तीनों क्वेश्चंस आपके सामने हैं. तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर. हाउ कैन यूनियन कार्बाइड सैल्वेज इट्स इमेज? सैल्वेज का मतलब है उसको इंप्रूव करना, अंडरस्टैंड. तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का बेस्ट आंसर क्या होगा? This particular set is not so tough. It is not so tough to handle, but still, let me see. Are we able to give all the answers correct or not? The question number 1, can you people tell me which is the correct answer? Yes, please. Yes, hi Dhanraj, good afternoon. Kashish, no, this is not PYQ. चलिए सभी स्टूडेंट्स स्टार्ट गिविंग द आंसर्स. और अगर मैं कोई पीवाईक्यू भी डिस्कस करता हूं तो भी उसका बहुत इंपॉर्टेंस है. देखो, डिसीजन मेकिंग में एक बार अप्रोच समझ में आ गया ना तो इट बिकम्स ईजियर. तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि सारी पीवाईक्यूज को एक बार ढंग से जरूर सॉल्व कर लें. चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द करेक्ट आंसर? आपके पार्थ हैज गिवन द आंसर, शिवांश हैज गिवन द आंसर, एंड आई सी दैट सबके आंसर्स अलग अलग हैं. क्या बात है, 3 स्टूडेंट्स के आंसर्स हैं, तीनों के अलग है. इसका मतलब है डिसीजन मेकिंग में कुछ कंफ्यूजन तो होता ही है. Yes, come on. Okay. चलो, आई सी मेजरली स्टूडेंट्स गिविंग द आंसर्स लाइक सी, डी, और एक आधे स्टूडेंट का आंसर ई भी है. क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन यूनियन कार्बाइड सैल्वेज इट्स इमेज? फर्स्ट ऑप्शन कहता है बाय गिविंग ऑनगोइंग एडवर्टाइजमेंट्स इन इंडियन न्यूज़पेपर्स स्टेटिंग द ट्रेमेंडस ग्रोथ इन प्रॉफिट्स एंड टैक्सेस इट कंटिन्यूज टू पे इन इंडिया ईयर ऑन ईयर. स्टूडेंट्स, इससे तो इमेज इंप्रूव होने वाली है नहीं, उल्टा इमेज स्पॉइल हो जाएगी कि आप इंडिया से बहुत सारा प्रॉफिट कमाते हो और इंडिया में इस तरह के डिजास्टर्स करते हो. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन एनीवे कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर. By conducting an online poll, asking people's opinions and impressions about its products and services. Actually, क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पर है ही नहीं. क्वेश्चन मार्क तो जो पूरा डेंट लग चुका है यूनियन कार्बाइड की इमेज पर, उसके सेफ्टी मेजर्स को लेकर उसने जो डिजास्टर किया. एनीवे स्टूडेंट, सेकंड ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता. कमिंग ऑन द थर्ड वन, by making public that Anderson no longer works with them and how they can no longer be held responsible. देखो, जिन बच्चों का आंसर यहाँ पर सी है, ये कहना कि हमने एंडरसन को निकाल दिया या पॉसिबली वो रिटायर हो गया, और वो भी स्टूडेंट्स आपने कोई हाथों हाथ तो निकाला नहीं, अंडरस्टैंड. हाँ, अगर आपने एंडरसन को हाथों हाथ निकाला होता, ये तो बाद में रिटायर हुआ, अंडरस्टैंड. और सेकंड स्टूडेंट, ये कहना कि नाउ एंडरसन डज नॉट वर्क विद अस सो देयरफॉर वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल नाउ. हाउ इज इट क्रेडिबल? कैन वी बिलीव दिस? एंड बाय दिस will the reputation improve? अरे, you will have to take the responsibility. आप एक पर्सन पर डालकर थोड़ी बच सकते हो, अंडरस्टैंड, कि देखो अब एंडरसन is not with us, so therefore we are not the culprits now. Not at all. तो इसीलिए स्टूडेंट्स, C does not become the correct answer. तो जिन भी बच्चों का आंसर C है is not correct. Yes, hi देवांश. Yes, कुछ बच्चों का आंसर यहाँ पर D है. By making public credible information surrounding the events under consideration and explaining how the company or the employees had no role to play. Students, अगर यूनियन कार्बाइड फोर्थ ऑप्शन कर पाए तब तो डेफिनेटली इसकी जो इमेज है वो सैल्वेज हो जाएगी, वो इंप्रूव हो जाएगी. अगर यूनियन कार्बाइड ये फोर्थ ऑप्शन कर पाए तो स्टूडेंट्स, हाउ कैन इट कैन सैल्वेज इट्स इमेज? डेफिनेटली बाय मेकिंग पब्लिक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन सराउंडिंग द इवेंट्स. एक्चुअल में उस दिन क्या हुआ था, और वो ये साबित करते हैं कि भाई जो भी हुआ था उसमें हमारे एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे. इट वॉज merely एन एक्सीडेंट एंड वी शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. किसी भी एंगल से हमारे प्रिकॉशंस में कोई कमी नहीं थी. दिस दैट जो भी अगर आप इस तरह से प्रूव कर सकें तो पॉसिबली बाय दिस ओके कंपनी की रेपुटेशन कुछ हद तक ओके मैनेज हो सकती है. तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स, फोर्थ बिकम्स अ बेटर चॉइस. Fifth, by creating a charter of morals and ethics to be followed by Union Carbide's employees,
in all the countries, citing Bhopal as the foundation for it. चलो मान भी लेते हैं कि फिफ्थ ऑप्शन कुछ हद तक हमें थोड़ा सा उस लाइन पर ले जाता है कि यस फिफ्थ सीम्स टू बी अ बेटर चॉइस, कि नहीं ऐसे एथिक्स बना दें कि चलो भोपाल में जो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ दैट नाउ वी पीपल आर फॉलोइंग द एथिक्स. बट व्हेन यू से दिस कि वी विल मेक चार्टर ऑफ मॉरल्स एथिक्स एंड ऑल, so you mean to say that you were waiting for a disaster to happen? This is something जो जनरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होता रहता है कि कहीं पर कोई डिजास्टर होगा उसके बाद सरकार जाती है और कुछ स्टेप्स उठाती है. तो मुझे बताओ क्या सरकार की रेपुटेशन इससे इम्प्रूव होती है क्या? अरे वाई वर यू वेटिंग फॉर अ डिजास्टर? एंड सेकेंड, अगर आप पूरे वर्ल्ड के लिए स्टैंडर्ड बना भी दो तो भोपाल वालों को जो नुकसान हुआ है और भोपाल में और इंडिया में जो इमेज को डेंट लगा है उसको कैसे आप इम्प्रूव करेंगे? एंड मोरओवर ये डेंट सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, सब जगह है. इसका मतलब है अब आप जब कहते हो कि ना वी विल मेक अ चार्टर ऑफ मॉरल्स एंड दिस दैट फॉर ऑल द एम्प्लॉइज, you were waiting for a disaster, and second, you accept that right now the morals and the standards which you were following were anyway weak. आप तो एक तरह से एक्सेप्ट कर रहे हो, पर इससे रेपुटेशन इंप्रूव नहीं होगी. ये तो एक तरह से एक्सेप्टेंस थे, एक्सेप्टेंस होगा कि हमारे स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी वीक थे. अंडरस्टैंड? तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स द बेस्ट आंसर हियर हैपेंस टू बी यस, फोर्थ ऑप्शन बिकम्स द बेस्ट आंसर. ओके, चलो सारे स्टूडेंट्स एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताओ, डू यू एग्री विद फोर्थ ऑप्शन और नॉट? थोड़ा सा अपन स्लोली चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं. हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि एकदम एक्यूरेसी बिल्डअप होनी चाहिए, और जिन स्टूडेंट्स को डिसीजन मेकिंग का ABCD भी अभी तक नहीं पता है वो भी समझें कि हाउ द डिसीजंस हैव टू बी टेकन. ओके, राइट कशिश, ओके अदिति, डन. ओके शिवांश, चलिए कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2. हाउ शुड द इंडियन गवर्नमेंट करेक्ट इट्स मिस्टेक्स? अब सरकार ने, भारत सरकार ने ओके बेल दे दिया, उसको भगा दिया, तो अब आप इंडियन गवर्नमेंट कैसे अपनी गलतियों को करेक्ट करे? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. तो बताओ स्टूडेंट्स. ओके, 2 का आंसर दिया है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने. इट सीम्स लाइक ओके धनराज, ओके शिवांश. तो फर्स्ट ऑप्शन सेज इट कैन अलाउ यूनियन कार्बाइड टू बी ट्राइड अंडर अमेरिकन जुरिस्डिक्शन. नहीं, नॉट एट ऑल. अरे भाई, इंडिया में अगर कोई बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ एंड इफ समवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ओके बेटर होगा कि उसका इंडिया में ट्रायल चलना चाहिए. अंडरस्टैंड? तो अमेरिका में ट्रायल चले, दैट इज नॉट द वे हाउ द इंडियन गवर्नमेंट कैन करेक्ट इट्स मिस्टेक्स, नॉट एट ऑल. कमिंग ऑन द सेकेंड वन, इट कैन एक्सट्राडिट एंडरसन टू इंडिया वेयर ही कैन बी ट्राइड. ये तो सबसे बेस्ट है. अगर सरकार ये कर पाए तो डेफिनेटली सरकार के जितने पुराने पाप हैं वो सब धुल जाएंगे. तो एब्सोल्युटली सेकंड सीम्स टू बी अ बेटर चॉइस. थर्ड, इट कैन अलाउ द भोपाल मॉब टू डिस्ट्रॉय यूनियन कार्बाइड्स इंडस्ट्रियल क्वार्टर्स. नॉट एट ऑल. आप इस तरह से थोड़ी अलाउ कर सकते हो कि चलो यार मॉब को बोलो कि तुम जाके डिस्ट्रॉय कर दो. दिस इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकली पॉसिबल एंड लीगली, morally किसी भी एंगल से this is not correct. Fourth option, it can set up a committee to launch it can set up a committee to launch an investigation to determine the real cause behind the tragedy. Students try to understand, अगर सरकार कमिटी बनाएगी तो एक्चुअल में मैसेज क्या जाएगा? गवर्नमेंट एक्चुअली इस पूरे प्रोसेस को और डिले करना चाहती है. हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, कमिटी बनाने का बेसिक पर्पस क्या होता है. तो कई बार तो कमेटी इसलिए बना दी जाती है कि गवर्नमेंट एक्चुअल में एक्शन लेना ही नहीं चाहती है, और वैसे भी स्टूडेंट्स बहुत साल हो चुके हैं. अब कमेटी बनाना कि इन्वेस्टिगेट करना व्हाट इज द रियल कॉज. सबसे पहला पॉइंट, आपने भगाया कैसे? एंड द सेकंड पॉइंट हैपेंस टू बी व्हेन द कोर्ट्स, इंडियन कोर्ट्स आर समनिंग एंडरसन, इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट, एंड वन ऑफ द इंडियन कोर्ट्स हैज ऑलरेडी गिवन द ऑर्डर कि आप एंडरसन को एक्स्ट्राडिट करके लेकर आओ. तो मुझे लगता है सरकार को सिंपल सा उसको एक्स्ट्राडिट करना चाहिए. दिस इज द ओनली वे. ओके, देन कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, इट कैन सेट अप अ कमिटी टू लॉन्च एन इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमाइन द रीजन एंडरसन वाज अलाउड टू लीव इंडिया. अब उस रीजन को पता कर भी लोगे तो उससे क्या हो जाएगा? एनीवे स्टूडेंट्स, द बेस्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन. कमिंग ऑन द थर्ड वन, वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस कुड गेट वॉरेन एंडरसन इनटू डीपर ट्रबल. व्हिच वन इज इट? So one of the following decisions could get Warren Anderson into deeper trouble. Which one is it?
तो बताओ स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ओके पार्थ का आंसर थर्ड है, शिवांश का आंसर सेकंड है। कम ऑन बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, धनराज हैज गिवन द आंसर थर्ड। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस कुड गेट वॉरेन एंडरसन इनटू डीपर ट्रबल, व्हिच वन इज दिस? फर्स्ट ऑप्शन सेज लॉबिंग विद द इंडियन गवर्नमेंट फॉर रिड्यूस द सेंटेंस। ओके, इससे ट्रबल उसका कम हो सकता है अगर उसकी लॉबिंग सक्सेसफुल हो जाए, इससे उसका ट्रबल बढ़ेगा, नॉट एट ऑल। तो फर्स्ट ऑप्शन कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। कमिंग ऑन सेकेंड ऑप्शन, फ्लीइंग टू अ कंट्री दैट हैज एन एक्सट्राडिशन ट्रीटी विद द इंडियन गवर्नमेंट। अब आप देखो, वैसे तो एक्सट्राडिशन ट्रीटी हमारा यूएसए के साथ भी है, बट एक्चुअली अमेरिका का सिटीजन है एंडरसन, एंड दैट इज द रीजन यूएसए इज नॉट वेरी सीरियस ऑन दिस फ्रंट। अब स्टूडेंट्स, एंडरसन यूएसए में तो कंपैरेटिवली सेफ है, उसको पता है कि वहाँ की सरकार उसे बचा लेगी, अंडरस्टैंड। बट अगर मान लो एंडरसन ऐसे किसी देश में चला जाए जहाँ पर इंडिया के साथ एक्सट्राडिशन ट्रीटी है, तो पॉसिबली स्टूडेंट्स, जैसे इंडिया को पता चलेगा कि एंडरसन इज इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, इंडिया कैन यूज इट्स डिप्लोमेटिक टाई-अप्स विद दैट नेशन, कैन प्रेशराइज दैट नेशन कि आप एंडरसन को पकड़कर हमें सौंप दें। तो यस स्टूडेंट्स, मुझे लगता है अगर एंडरसन ऐसे किसी देश में जाता है जिसके साथ इंडिया की एक्सट्राडिशन ट्रीटी है, तो पॉसिबली एंडरसन विल बी इन अ डीपर ट्रबल। द सेकेंड ऑप्शन सीम्स टू बी लॉजिकल। कमिंग ऑन द थर्ड वन, visiting the Indian subcontinent for a family tour. Now you people try to understand. Third option कई सारे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये नहीं लिखा है कि विजिटिंग इंडिया विद फैमिली, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आप सोचो स्टूडेंट, सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो अब आप सोचो पाकिस्तान अगर एंडरसन आकर चला भी जाए, व्हाट कैन इंडिया डू? एंड एंडरसन को पता है पाकिस्तान तो कहीं पर मुझे पकड़कर इंडिया को सौंप दे, ऐसा होगा नहीं, अंडरस्टैंड। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट घूमने से रिस्क नहीं है। रिस्क तब है जब वो ऐसे देश जाए जिसके साथ इंडिया की एक्सट्राडिशन ट्रीटी है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, थर्ड इज कंफ्यूजिंग बट दिस इज नॉट करेक्ट। एंड सी हाउ पेपर सेटर एक्चुअली कंफ्यूजेस द स्टूडेंट्स। यहाँ पर लिखा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो जैसे मैं पढ़ूंगा मुझे लगेगा यस दिस इज गोइंग टू बी रिस्की, बट नॉट एट ऑल। ओके, द बेस्ट आंसर हियर हैपेंस टू बी सेकंड ऑप्शन। एंड डू लेट मी नो जिन बच्चों का आंसर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है, कुड यू अंडरस्टैंड व्हाई थर्ड इज नॉट द करेक्ट आंसर? यस प्लीज, फटाफट बताओ। Could you understand why third is not the correct answer? Absolutely. Okay, Dhanraj? Done. Yes, so you people have to be careful in this as well. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। So this was the first set. चलिए, coming on the second set. अच्छा, सेकेंड सेट लेने के पहले वापस से सेम अनाउंसमेंट। और सबसे पहला तो थैंक यू वेरी मच, मतलब इतना टेरिफिक रेस्पॉन्स मिलेगा। वी पीपल वर नॉट विजुअलाइजिंग दिस एंड वी थॉट कि चलो सर, देखिए पहली बार, बट सो मेनी स्टूडेंट्स कैट 2025 को लेकर द वे स्टूडेंट्स आर टेकिंग एडमिशंस विद अस, दैट इज फैंटास्टिक, दैट इज truly a morale booster for us, and we are committed that in the coming days CAT 2025 को लेकर और CAT को लेकर ACE CAT is going to actually become a trusted name in the whole country. So students, thank you very much, and जिन बच्चों ने और आपके जितने भी जूनियर्स हैं उन सबको भी आप मोटिवेट करें, they can actually explore the courses, and we have launched a course recently, Mission IIM Possible. But it's not impossible now, it is IIM possible. तो स्टूडेंट्स, आप लोग एस कैट का आप इंस्टॉल करो और इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करो। चलिए, थैंक यू वेरी मच। एंड स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड सेट। दिस बिकम्स द सेकेंड सेट एंड दिस इज वन ऑफ द PYQs। XAT 2022 में ये था। तो चलिए स्टूडेंट्स, डेटा इज गिवन टू अस एंड वन क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर। चलिए स्टार्ट गिविंग द आंसर्स। Yes, fundamental research in science for corporate applications is an R&D unit of a public sector undertaking. Okay, and the organization's employees are research scientists who assist the public sector undertaking through their R&D. Given the far-reaching implications of its research, FRSCA was established as a separate entity near the factory of the PSU.
This organization, this applications has 3 levels of hierarchy: junior, senior, and chief scientist. And all of them reside on the campus. Hence, every scientist, regardless of the hierarchy, resides in a house that is similar in all aspects. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना स्टूडेंट्स। आपकी हायरार्की कुछ भी हो, आप जूनियर लेवल पर हो या सीनियर पर हो या चीफ हो, लेकिन स्टूडेंट्स जो घर है वो सिमिलर है सभी के लिए, अंडरस्टैंड। एंड यहाँ पर क्लियर कट मेंशन्ड है रिगार्डलेस ऑफ हायरार्की। तो इसीलिए कभी कभी हम लोग अपना एक परसेप्शन बना लेते हैं, तो स्टूडेंट्स कभी भी ऐसा मत करना। तो बी वेरी केयरफुल कि व्हाट इज गिवन हियर। अदरवाइज हम लोग अपना परसेप्शन बना लेंगे कि हाउसिंग में seniors should be given preference, not at all. Though the scientists are entitled to a house rent allowance, given the distance of FR's SCA from the city, housing them on the campus makes sense. तो हालांकि सभी को मिलता है, अलाउंस मिलता है, बट सब लोग वहीं पर रहना भी चाहते हैं क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। The new recruits are provided a transit accommodation in the institute studio apartments until vacant houses are available. For these recruits, a queue has been created on the basis of their date of joining and not on hierarchy, with the most recent recruit going to the last in the queue. Execution of this policy is the responsibility of the organization's chief administrative officer, who reports to the director of FRSCA. तो समझ में आया स्टूडेंट्स, इनकी एक हाउसिंग सोसाइटी है जो फैक्ट्री के पास में है, एंड सब लोग वहीं पर रहना चाहते हैं और वहीं पर रखना है सभी को। एंड हायरार्की डज नॉट मैटर। जैसे जैसे न्यू रिक्रूटमेंट्स होते जाते हैं, जिसका भी फर्स्ट हुआ और जैसे ही कोई घर खाली होगा तो सबसे पहले उसको मिलेगा, ठीक है। तो इस सिस्टम पर ये अलॉटमेंट होता है। अब स्टूडेंट्स मुझे लगता है जो केसेस आएंगे डेफिनेटली हाउसिंग अलॉटमेंट से रिलेटेड आएंगे। वी नीड टू सी कि हमें कौन सा हाउस किसको अलोकेट करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होंगे। Harsh Kohli resides in house number 324 since long. Harsh wants to move from a 3 series house to a 2 series house because his mother-in-law, a chief scientist, lives alone in house number 225. A few years back, Harsh formally requested the CAO to allow him to move to a 2 series house whenever available. Recently, when house number 224 becomes vacant, Harsh appeals to the CEO for that house, citing his earlier request. Currently, there are 5 scientists waiting in the queue, and soft tangut is on the top of the queue. From the following options, choose the best action to be taken by the CEO without violating the existing housing policy. बताओ स्टूडेंट्स, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो सीईओ को यहाँ पर क्या करना चाहिए? एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, जो उनकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो वायलेट नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंड। और ऑलरेडी हर्ष कोहली 324 में रह रहा है, अंडरस्टैंड, ओके। अब उसे 224 चाहिए, ओके। एंड जनरली पॉलिसी क्या है, जो भी न्यू रिक्रूट्स होते हैं उन्हें जैसे जैसे घर खाली होते जाते हैं उन्हें अलॉट किया जाता है, अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, प्लीज टेल मी। तो 5 ऑप्शन में से विच इज द बेस्ट आंसर? ओके धनराज, ओके शिवांश, ओके। चलो, तो इट सीम्स लाइक वापस से सबके आंसर्स अलग अलग हैं। यस 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 एवरीवन, क्या लगता है विच इज द बेस्ट वे? ओके, आई विल गो थ्रू ऑल द ऑप्शंस वंस। Allowed house number 224 to South, asking Harsh to negotiate a possible swap with Soft. स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपने सॉफ्ट को अलॉकेट कर दिया, अब उसके बाद आप कह रहे हो कि आप सॉफ्ट से बात कर लो। मुझे लगता है स्टूडेंट्स, क्या लगता है, ये किसी ने आंसर दिया? हालांकि एक स्टूडेंट का आंसर, 2 स्टूडेंट्स का आंसर ए है। अच्छा, ये भी ठीक है, मतलब सॉफ्ट को अलॉकेट करके उसके बाद हर्ष को बोलो कि आप चाहो तो सॉफ्ट से बात कर लो। अब सोचो स्टूडेंट्स, अगर ये करना होता तब तो बेस्ट है कि उस 2 सीरीज में ऑलरेडी जितने घर अलॉकेटेड थे, ओके, हर्ष को पहले ही बोल देते हैं कि भाई उस 2 सीरीज में जो भी लोग रह रहे हैं आप तो उनसे बात करके बात कर लो, अंडरस्टैंड। तो मुझे लगता है अगर उसके लिए वेट करना था, इसका मतलब है फिर हर्ष को क्लियर कट बोल देना था कि भाई जो हाउस आपको मिला है हमारी तरफ से तो वही रहेगा, हम किसी भी तरह से आपकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं कर सकते, और तुम्हें अगर 2 सीरीज में आना है तो जितने घर 2 सीरीज में है तुम डायरेक्टली बात करके ट्राई टू स्वैप बिटवीन योरसेल्फ। तो दिस इज व्हाट द सीईओ वांट्स टू से।
इसका मतलब है कंपनी किसी भी तरह से हर्ष को हेल्प नहीं करने वाली है. ओके, दिस इज व्हाट द मीनिंग हैपेंस टू बी. अब देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस चूज द बेस्ट एक्शन टू बी टेकन बाय द सीईओ. Best action taken by the CEO without violating the existing housing policy. Coming on students B, create a separate queue for extant residents and give them the first right to refuse. Okay, separate queue for extant residents and give them the first right to refuse. Anyway, students, जितना data दे रखा है उसके हिसाब से second option is not suitable. 100% ये तो violate करेगा ही करेगा. तो जो लिखा है हमें तो उसी पॉलिसी में देखना है, ठीक है, जो वायलेट ना करे. अंडरस्टैंड. आस्क हर्ष टू जॉइन द क्यू बिकॉज साइंटिस्ट इन द क्यू शुड बी गिवन प्रायोरिटी. ओके, आस्क हर्ष टू जॉइन द क्यू बिकॉज साइंटिस्ट इन द क्यू शुड बी गिवन प्रायोरिटी. ओके, तो हर्ष को कहना कि तुम क्यू ज्वाइन कर लो, जबकि ऑलरेडी वो उसी घर में रहता है, उसी सोसाइटी में रहता है. अंडरस्टैंड. क्यू किसके लिए है? जो न्यू रिक्रूट्स है. इसीलिए स्टूडेंट्स, आई डोंट थिंक सो सी विल बी अ फिजिबल ऑप्शन. कुछ बच्चों का आंसर डी भी है. आस्क हर्ष टू मूव द हाउस टू द हाउस नंबर 224 इमीडिएटली एंड अलोकेट हर्ष's हाउस टू सॉफ. तो फोर्थ ऑप्शन भी कुछ बच्चों ने बोला है कि फोर्थ इज ऑल्सो बेटर चॉइस. एंड फिफ्थ सेज इग्नोर हर्ष रिक्वेस्ट सिंस इट वायलेट्स द हाउसिंग पॉलिसी. इग्नोर करना ये भी कोई बहुत अच्छा सजेशन नहीं है, बेस्ट एक्शन नहीं है. इससे तो फिर बेटर होगा कि मैं फर्स्ट ऑप्शन मार्क करूँ. ओके, कि घर उसको अलॉट करके फिर उसको बोले कि तुम उससे बात कर लो. इग्नोर करना इज नॉट द सोल्यूशन. तो मुझे लगता है स्टूडेंट यहाँ पर दो ऑप्शन हैं जो क्लोज हैं, ए एंड डी. अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ए और डी में से विच इज अ बेटर चॉइस? एंड शिवान सेज कि एंड ऑल्सो हर्ष हैज इन्फॉर्म्ड टू सीईओ years ago which make it unethical. ओके, तो शिवांश विच इज योर फाइनल आंसर? डी. ओके, धनराज कहता है फोर्थ वन इज स्ट्रेट अप इग्नोरिंग द पॉलिसी इन माय व्यू. धनराज कहता है कि ये तो एक तरह से पॉलिसी को इग्नोर करना हो गया. कि आप अगर हर्ष को कहते हो कि तुम इमीडिएटली 224 खाली कर लो, 224 में आ जाओ और फिर 324 हम लोग अलोकेट कर दें सॉफ्ट को. तो ओके, शिवांश का आंसर फोर्थ ऑप्शन है. पार्थ सेज व्हाट इफ सम अदर एग्जिस्टिंग रेसिडेंट आल्सो वांट्स अ हाउस इन अ 2 सीरीज. तो आप किस किस को स्वैप करने के लिए बोलेंगे? ओके, एंड कशिश सेज फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर. शिवांश सेज ऑल हाउसेस आर सेम, द सॉफ्ट विल नॉट हैव एनी इशू. शिवांश का एक और लॉजिक है. हाँ, यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सारे घर वन एंड द सेम. अंडरस्टैंड. तो जब सारे घर वन एंड द सेम है और सॉफ्ट को तो उस हाउसिंग सोसाइटी में शिफ्ट होना है, तो अगर सॉफ्ट को आपने 3rd सीरीज में या 3 सीरीज में भी दे दिया, तो मुझे लगता है सॉफ्ट को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. बट इससे अगर हर्ष की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? और इससे कौन सा वायलेशन हो रहा है? हम ये तो कर ही नहीं रहे कि सॉफ्ट के साथ कोई इनजस्टिस कर रहे हैं, घर होते हुए भी उसको नहीं दे रहे हैं. घर तो दे ही रहे हैं, बट किसी की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझते हुए अगर मदर इन लॉ के पास, और मदर इन लॉ भी कौन, जो कि चीफ साइंटिस्ट है ऑलरेडी उसी में, तो मुझे लगता है अगर हम हर्ष की प्रॉब्लम को समझते हुए 224 अलोकेट कर भी दें, क्योंकि घर सबके एक जैसे हैं, तो मुझे लगता है सॉफ्ट के साथ कोई इनजस्टिस भी नहीं हो रहा है और हर्ष की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है. तो आई थिंक स्टूडेंट्स द बेटर चॉइस हियर शुड बी फोर्थ ऑप्शन. ओके, फोर्थ ऑप्शन. और किसी की अगर कोई जेन्युइन, वो जो क्वेश्चन है कि सर ऐसे तो सभी लोग चाहेंगे कि 3rd सीरीज में या 2nd सीरीज में घर मिले, यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड. किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, तो उसे कंपनी को एड्रेस करना चाहिए और इसमें वायलेशन तो हो ही नहीं रहा. अंडरस्टैंड. नाउ कंसिडरिंग कि ऐसा सब करना चाहेंगे, क्यों करना चाहेंगे? सबके घर एक जैसे. अंडरस्टैंड. तो इसमें ना तो 2nd सीरीज में कोई एडवांटेज है, ना 3rd सीरीज में कोई यूनिवर्सल डिसएडवांटेज है. तो इसीलिए स्टूडेंट्स, आई थिंक फोर्थ ऑप्शन इज अ बेटर चॉइस. ओके, बताओ स्टूडेंट्स. अच्छा, ये भी बात बिल्कुल नोटिसेबल है कि हर्ष की जो प्रॉब्लम है वो कोई इंस्टेंट तो है नहीं, तो कई सालों से वेट कर ही रहा है. अंडरस्टैंड. तो इसीलिए हर्ष की प्रॉब्लम को कंसिडर किया जा सकता है. हाँ, अगर वो इंस्टेंट होती है, आज रिक्वेस्ट की और अभी का अभी कर दो, तो पॉसिबली स्टूडेंट्स वो फिर भी एंटरटेन ना हो. इट्स अ लॉन्ग प्रॉब्लम विच हर्ष इज फेसिंग. तो एब्सोल्युटली आई विल गो विथ फोर्थ ऑप्शन. ओके, चलिए धनराज, आप भी एग्री करते हैं? एग्री करते हैं फोर्थ इज अ बेटर चॉइस. तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं दिखने में स्टूडेंट्स बहुत सिंपल होते हैं, बट स्टिल यू मे कमिट अ मिस्टेक हियर. So that is the reason we have to be extra careful
in solving such questions as well. Once you people are able to shortlist that the answer lies between these two only, हमेशा हर एंगल से उस पर्टिकुलर ऑप्शन के बारे में सोचो, हर डायमेंशन से सोचना। और इसीलिए मैं कई बार मोटिवेट करता हूँ स्टूडेंट्स को, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ sitting in isolation and studying, it is always better you may sit in a group of 2 and 3 and then discuss. तो स्टूडेंट्स आपका ब्रेन ज़्यादा ओपन अप हो पाएगा and you will actually come to know multiple other dimensions of thinking as well. Okay? Okay, Dhanraj, done. चलिए आगे बढ़ते हैं, कमिंग ऑन। अब इसी का स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम लॉजिक। Which of the following responses by the CAO shall be perceived as the most appropriate by all the stakeholders? पॉइंट समझ में आ गया। अब इसके साथ भी प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को रखना है और स्टूडियो अपार्टमेंट बहुत छोटा है। अब उसने सीईओ को रिक्वेस्ट किया कि भैया आप मुझे क्यू में ऊपर ले लें, बट उसका नंबर 3rd है, तो बहुत जल्दी से घर मिलेगा उसका चांस भी नहीं है। तो अब बताओ कि सीएओ ऐसे केस में बेस्ट क्या कर सकता है, विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट बाय ऑल दी स्टेक होल्डर्स, परसीव्ड as most appropriate by all these stakeholders. Okay, chalo, one student has given the answer. Okay, okay, Shivansh. Yes, come on everyone, start giving the answers. Yes, absolutely. मुझे लगता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर यहाँ पर ठीक है। चलो अपन 1 by 1 सभी ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं फटाफट। आस्क रॉन्ग या जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, टू नेगोशिएट and arrive at a consensus with the 2 scientists ahead in the queue, which the CEO shall implement. I think students this is not justified. अच्छा, जो 2 पहले के साइंटिस्ट थे उनकी क्या प्रॉब्लम है, who knows? तो इस तरह से वही आपस में क्यू में ऊपर नीचे हो जाए, I think this is not practically feasible as well. और उसे कहना कि तुम ही बात कर लो बाकी दोनों से, ये वापस अपनी जिम्मेदारी से बचने जैसा है। आप एक चीज़ समझना, लास्ट क्वेश्चन में भी कुछ बच्चों ने मार्क किया था कि भाई सौफ को तो घर अलॉट कर दो और फिर हर्ष को कहो कि तुम ही बात कर लो। तो ऐसा नहीं लगता कि जो सीईओ है वो अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहा है। ओके, आपको तो स्टूडेंट्स एक रेस्पॉन्सिबल सोल्यूशन देना, अंडरस्टैंड। द फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। इन्फॉर्म रॉन्ग दैट नथिंग कैन बी डन सिंस वायलेशन ऑफ रूल्स विल सेट द रॉन्ग प्रेसिडेंट्स। ये भी स्टूडेंट्स मुझे लगता है उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए तो थोड़ा सा इनजस्टिस होगा, उसके प्रॉब्लम्स भी जस्टिफाइड है। तो आई थिंक सीएओ कोई और रोल यहाँ पर प्ले कर सकता है जो सभी स्टेक होल्डर्स के लिए बेटर हो। सी कहता है फैसिलिटेट रॉन्ग इन गेटिंग अ हाउस इन द सिटी अलॉन्ग विद द फ्री कम्यूटेशन फॉर द फर्स्ट 3 months। आई थिंक स्टूडेंट सिटी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि डिस्टेंस बहुत है, हाउस रेंट अलाउंस मिल भी जाता है तो आने जाने में भी टाइम लगता है एंड पॉसिबली कम्यूटेशन काफ़ी महंगा भी हो सकता है। तो अगर सीएओ घर सिटी में दिलवा दे और साथ में कम्यूटेशन की कम से कम 3 महीनों की जिम्मेदारी ले ले, पॉसिबली जब तक हाउसिंग सोसाइटी में कोई घर न मिल जाए, तो आई थिंक ये एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। इसमें रूल्स भी वायलेट नहीं होंगे और उस प्रॉब्लम की, उस पर्सन की प्रॉब्लम भी कुछ हद तक रिलीव हो जाएगी। तो इंडीड सी सीम्स टू बी द बेस्ट चॉइस हियर। आस्क रॉन्ग टू मीट विद द डायरेक्टर एंड प्रेजेंट हिज केस टू गेट एन एक्सेप्शन। आई थिंक स्टूडेंट्स वंस अगेन इट इज जस्ट लाइक अवॉइडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि चलो यार मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ तो तुम तो सीधे डायरेक्टर से मिल लो, लेट हिम टेक अ कॉल। और वैसे भी रूल्स को वायलेट करना, पॉसिबली इवन डायरेक्टर मे नॉट वांट टू डू दिस। फिफ्थ, मूव रॉन्ग टू द टॉप ऑफ द क्यू एंड मेक अ रूल द साइंटिस्ट विद एलिंग पेरेंट्स शैल बी गिवन प्रेफरेंस। आई थिंक वैसे भी दिस डज नॉट कम अंडर द पावर ऑफ द सीएओ। अगर ऐसा कोई रूल भी चेंज करना है
तब तो स्टूडेंट्स ये तभी पॉसिबल होगा जब डायरेक्टर लेवल पर इस पर कुछ डिसीजन हो। तो फिफ्थ ऑप्शन तो सीईओ के हाथ में है ही नहीं, अंडरस्टैंड। तो हियर द बेस्ट आंसर हैपेंस टू बी थर्ड ऑप्शन। आई होप यू पीपल एग्री, और आई सी सो मेनी स्टूडेंट्स सेइंग थर्ड एज द करेक्ट आंसर। एब्सोल्युटली। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। यस, यस पार्थ, इस पर्टिकुलर केस में सी इज द बेस्ट सोल्यूशन। आपका जो कंसर्न है कि व्हाट इफ लुकिंग एट दिस केस अदर्स ट्राइज टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। देखो इस मामले में तो बहुत सिंपल सा ये है, किसी ने कोई भी एक्सप्लेनेशन दिया या कोई भी बहाना बनाया, कोई भी एक्सक्यूज दिया, जैसे एलिंग पेरेंट्स का, तो एटलीस्ट द कंपनी कैन जज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द एक्सक्यूज। द कंपनी कैन डिमांड ऑल द रिपोर्ट्स, डॉक्टर सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। मुझे लगता है उसके लिए मैकेनिज्म बनाया जा सकता है। यस, क्वेश्चन नंबर 3। Of late, the CEO has received several requests from the residents of 3 series houses to move to other series houses. The CEO is aware that this is largely because of their own noisy factory nearby. Due to limited housing available on the campus, he must do something before the problem worsens. He wants to find a solution that makes the lives of 3 series residents more comfortable. So which of the following actions can best help the CEO in achieving his goal? तो क्या लगता है स्टूडेंट्स, विच इज द बेस्ट आंसर हियर? कशिश, आपका जो पिछले क्वेश्चन में जो पॉइंट है ना कि भाई फ्री कम्यूटेशन देना विल नॉट बी जस्टिफाइड, दैट इज व्हाट यू मीन टू से, फ्री कम्यूटेशन विल नॉट बी जस्टिफाइड। बट सी, व्हेन आई से द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, अगर सी से बेटर कोई और ऑप्शन था तो यू वुड हैव सेड। मुझे लगता है स्टूडेंट्स, इवन इफ सी हैज अ बिट ऑफ such things which cannot be justified, but still the most appropriate option happens to be C only. इसलिए last question में C still remains the best answer. Okay, चलिए, now which is the correct answer here? Let us try to understand. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है सबको समझ में आ गई? तो what can be the best solution here? Install expensive soundproof windows in the 3 series quarters. Okay, और कोई ऑप्शन? Yes, I see so many students giving first option as the answer. अच्छा, एक स्टूडेंट का आंसर यहाँ पर फोर्थ है। Offer a high HRA to 3 series residents, nudging them to move to the city. इसका मतलब है आप एक्चुअली सोल्यूशन देने के बजाय आप उल्टा 3 सीरीज में रहने वाले लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई तुम तो सिटी में रहना स्टार्ट कर दो, हम तुम्हें एक्स्ट्रा अलाउंस दे देंगे। अंडरस्टैंड? इससे क्या हो जाएगा? इनफैक्ट उस हाउसिंग सोसाइटी के जो 3 सीरीज के घर हैं वो और खाली रह जाएंगे। ओके, सोल्यूशन क्या है? आपने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इतने घर बना रखे हैं, तो लेट अस गो फॉर अ सोल्यूशन। इससे तो बेटर होगा कि आप अगर एक्स्ट्रा हाउसिंग अलाउंस उनको देंगे, बेटर है कि हम लोग एक साउंड प्रूफिंग कर लें, तो एक परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। तो आई थिंक स्टूडेंट्स द बेस्ट आंसर हियर इज फर्स्ट ऑप्शन। इंडीड फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, चलिए, तो स्टूडेंट्स ये 2 सेट्स हमने सॉल्व किए, एंड एक और सेट है जो एक्चुअली XAT 2024 का। आई एम जस्ट शोइंग द सेट टू यू। आई वांट ऑल द स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर सेट पर एक बार सॉरी, मैं सेशन तो अभी एंड कर रहा हूँ, बट मैं चाहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स, यू पीपल शुड गो थ्रू दिस पर्टिकुलर सेट ऑल्सो। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेट, बहुत अच्छा सा सेट है। चलो अपन एक काम करते हैं, मैं 5 मिनट्स सेशन को एक्सटेंड करता हूँ, इस सेट को भी अपन सॉल्व कर ही लेते हैं। XAT 2024 का ये सेट है, and one small data is given to us and 3 questions are based on it. Okay, so let me see what are your answers. So चलिए all the students, set number 3, Mrs. Vinita Lama, a respected figure in the small town of Jampur, found herself stranded on the road. स्टूडेंट्स, कभी भी किसी भी डेटा में जो भी लिखा होता है, हर चीज़ पर स्टूडेंट्स यू पीपल हैव टू फोकस। आप किसी भी चीज़ को ओवरलुक करके मत चलो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या लिखा है, जामपुर इज अ स्मॉल टाउन, तो पॉसिबली किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में इवन दिस इज गोइंग टू हेल्प अस।
So Miss Vinita Lama, a respected figure in the small town of Jampur, found herself stranded on the road once again when her old small hatchback car broke down once again. मतलब ये गाड़ी बार बार ब्रेक डाउन हो रहा है. Finding herself alone on the deserted road with no one to help, Vinita in desperation called Shyam Saigal. Just 1 second, students. Sorry. Called Shyam Saigal, the general manager of Balaji Motors, the only dealership in Jampur that sells Diplomatico cars, the brand that Vinita drives. ओके, तो ऑलरेडी विनीता के पास देखिए किसी ब्रांड की कार है, कार्स हैं. ओके, दैट सेल्स डिप्लोमेटिको कार्स, द ब्रांड दैट विनीता ड्राइव्स. तो वो जो गाड़ी है विनीता की, पॉसिबली वो इसी ब्रांड की है. ओके, विनीता ड्राइव्स, दैट इज रिटन हियर. विनीता न्यू श्याम फ्रॉम हर फ्रीक्वेंट विजिट्स फॉर गेटिंग हर हैचबैक कार सर्विस्ड. ओके, तो वो जो कार है वो इसी ब्रांड की है. सरप्राइजिंगली ही अराइव्ड विदिन 15 minutes, accompanied by a mechanic from his dealership. Further, he arranged for the vehicle to be towed and kindly offered Vinita a ride home. On the way back, he advised Vinita to exchange her old car with a new sports utility vehicle on a good discount from his dealership. He assured her that he would add several additional services to ensure her SUV remained in excellent condition for many years ahead. Okay? Yes. तो पॉइंट समझ में आ गया. डिप्लोमेटिको की ही एक छोटी हैचबैक कार वो चला रही है. अब स्टूडेंट्स, दैट पर्टिकुलर डीलर, दैट पर्टिकुलर पर्सन श्याम सहगल, ओके, वो रिकमेंड कर रहा है कि आप इसी कंपनी की एक एसयूवी आई है वो परचेज कर लें ऑन अ गुड डिस्काउंट, ओके, फ्रॉम हिज डीलरशिप. एंड ही assured her that he would add several additional services to ensure her SUV remained in excellent condition for many years ahead. Now, coming on the first question, due to her old car's frequent breakdowns, Vinita decided it was the time to replace it. She was afraid whether buying a Diplomatico SUV from Balaji Motors, as suggested by Shyam, will be a right decision for her or not. So, which of the following pieces of additional information will help her the most in taking the right decision? ध्यान रखना, decision क्या लेना है that is not given. Okay, in taking the right decision. इन 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है, कौन सा एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐसा है विच विल एक्चुअली हेल्प इन टेकिंग अ राइट डिसीजन? तो बताओ स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा? वंडरफुल क्वेश्चन. यस पार्थ, डेफिनेटली मैं VALR पर कुछ सेशंस लूंगा. कल पॉसिबली हम लोग जो सेशन लेंगे दैट विल बी ऑन VALR ओनली. चलिए, ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्ट गिविंग द आंसर्स. क्या होगा बेस्ट आंसर? I see maximum students giving C as the answer and one student says fourth is the answer. चलो मैं सबसे पहले fourth को पढ़ता हूँ. Jampur being an old city with congested roads has a parking problem in many areas. Okay, parking problems in many areas. देखो अब सारे students, जिन भी बच्चों ने fourth option आंसर दिया, I'll tell why fourth option is not the correct answer. पहली चीज तो students additional information होनी चाहिए. अब आप देखो मिस विनीता लामा, वो काफ़ी टाइम से जामपुर में रह रही है एंड इट्स अ स्मॉल टाउन. तो क्या ये जानकारी है कि जामपुर में ज़्यादातर या मैनी एरियाज आर कंजस्टेड, रोड्स आर कंजस्टेड? क्या ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है? क्या पॉसिबली विनीता लामा को इसके बारे में नहीं पता होगा व्हेन शी इज़ ऑलरेडी लिविंग इन जामपुर? आई थिंक स्टूडेंट्स फोर्थ ऑप्शन इज़ नॉट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन. एंड सेकेंड, मान लेते हैं मैनी एरियाज में पार्किंग की प्रॉब्लम भी है, बट स्टिल ओके, क्या पता विनीता लामा जहाँ रहती है या उसे जहाँ पर जाना होता है वहाँ पर पार्किंग की प्रॉब्लम है कि नहीं है. एनीवे स्टूडेंट्स, दोनों चीज़ें. पहली चीज़ तो आई डोंट कंसिडर इट टू बी एन एडिशनल इंफॉर्मेशन. ओके, सो बी केयरफुल इन दैट. ओके, एंड ऑल्सो इन्फो शुड बी अबाउट SUV. नहीं, मैं ये तो नहीं कहता कि जो इन्फॉर्मेशन है वो SUV के बारे में ही होनी चाहिए. कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है. ओके, हालांकि द क्वेश्चन हैपन्स टू बी, क्या डिप्लोमेटिको SUV फ्रॉम बालाजी मोटर्स परचेज करना चाहिए कि नहीं? तो इसमें मुझे लगता है बहुत सारे डिसीजंस हैं. एक तो SUV लेना है कि नहीं लेना है, तो दैट बिकम्स द फर्स्ट कॉल. सेकंड, लेना है तो क्या डिप्लोमेटिको कंपनी की है SUV लेनी है कि नहीं, दैट बिकम्स द सेकंड डिसीजन.
चलो मान भी लेते हैं कि नाउ वी हैव डिसाइडेड कि वी विल टेक एन एसयूवी फ्रॉम डिप्लोमेटिको ऑफ डिप्लोमेटिको कंपनी, बट अगेन द थर्ड डिसीजन इज क्या बालाजी मोटर्स से लेना है कि नहीं लेना। हालांकि मुझे लगता है बालाजी मोटर्स से विनीता को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बिकॉज हैशबैक कार में जब ब्रेकडाउन था तो वहां से 15 मिनट्स में द पर्सन केम एंड दैट टू विद द मैकेनिक एंड ही अरेंज्ड ऑल दी अदर फैसिलिटीज एज वेल। तो मुझे लगता है जो मेजर डिसीजन है वो एसयूवी एंड दैट टू डिप्लोमेटिको। ओके, चलिए तो स्टूडेंट्स क्या लगता है बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए? सीमैट का एग्जाम बेटा 3 घंटे का होता है। चलो अभी अपन इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो यस, द बेस्ट आंसर इफ यू कंपेयर ऑल दी ऑप्शंस, द बेस्ट आंसर हियर हैपेंस टू बी थर्ड ऑप्शन। A brother, an SUV enthusiast staying in a metro city, has advised her to stay away from diplomatico cars. तो डेफिनेटली जब उसने कहा कि आप इन कारों से दूर रहो, तो yes, this becomes one additional suggestion, one additional information which can actually demotivate Vinita from purchasing any diplomatico car. और साथ में स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखा है, डिप्लोमेटिको जो कार है उसमें ब्रेकडाउन कोई पहली बार नहीं हुआ, वंस अगेन। तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिको को लेकर इवन शी वाज कंसर्न एंड साथ में उसके ब्रदर ने भी ये कह दिया। तो यस, दिस बिकम्स एन एडिशनल रिकमेंडेशन इंफॉर्मेशन विच कैन एक्चुअली हेल्प विनीता इन टेकिंग अ राइट डिसीजन। तो यस, आई विल गो विद सी। कुछ बच्चों का आंसर यहाँ पर ए भी है, तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट ऑप्शन। अ न्यू डीलरशिप ऑफ Panther Motors, the highest selling car brand in the country, is about to come to the town soon. देखो, try to understand. चलो मान लेते हैं this becomes one additional information कि विनीता को ये पता चला कि एक नई डीलरशिप आ रही है, पैंथर मोटर्स, हाईएस्ट सेलिंग कार ब्रांड इन द कंट्री, और वो टाउन में आने वाली है। ओके, मुझे बताओ स्टूडेंट्स, क्या इससे राइट डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी? ओके, देखो डिसीजन क्या है, मैं डिप्लोमेटिको कार परचेज करूं कि नहीं करूं, दैट वाज व्हाट आई वाज कंसीडरिंग। अब इसी बीच में पता चला कि एक पैंथर शोरूम्स भी सिटी में आ रहा है। ओके, तो डेफिनेटली प्राइमा फेसी इट सीम्स लाइक यस एक और नया शोरूम आ रहा है, तो वी विल हैव टू वेट एट लीस्ट फॉर दैट शोरूम सो दैट वी कैन कंपेयर एंड टेक अ वाइज कॉल। इसीलिए कुछ बच्चों ने फर्स्ट ऑप्शन आंसर दिया है। But now you people try to understand, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, शुड आई टेक अ डिप्लोमेटिको एसयूवी और नॉट। हो सकता है स्टूडेंट्स पैंथर का शोरूम आ रहा है, लेकिन उससे मेरा ये जो डिसीजन मेकिंग है ये और ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं होगा, उससे ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पहली चीज़ तो मैं इस कार को लेकर भी कंफ्यूज हूँ, अब एक नया शोरूम भी आ रहा है तो मुझे वेट भी करना है, फिर मैं कंपेयर करूँगी, कंपेयर करने के बाद भी अगेन द प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम कि मैं ये लूँ या ना लूँ। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स जो थर्ड ऑप्शन है ना, ये तो स्ट्रेट अवे विनीता को कह रहा है कि यू शुड नॉट टेक इट। तो यस, एंड वी शुड नेवर फॉरगेट हर ब्रदर इज अ एसयूवी एंथुसियास्ट, तो ही अंडरस्टैंड्स अ लॉट अबाउट एसयूवी। मुझे लगता है स्टूडेंट्स अगर मैं ए और सी में कंपेयर करूँ तो सी इज फैसिलिटेटिंग विनीता इन टेकिंग द डिसीजन outrightly, okay, rather than waiting for the new showroom। इससे तो वो डिसीजन पोस्टपोन होएगा, लेकिन वो डिसीजन लेने में फैसिलिटेट होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। ओके, दिव्यांश, ये सभी दिव्यांश हम लोगों ने 2-3 सेट्स और किए थे, एनीवे क्लासेस में करते रहेंगे। ऐश्वर्या, आई थिंक यू पीपल यू हैव अंडरस्टूड व्हाई ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। ओके, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। Coming on students, question number 2. Shyam's satisfaction from meeting the month's quota for selling SUVs turned to dismay when one of his young executives nervously told him that he mistakenly punched an extended warranty for free to Vinita's purchase contract earlier that morning. This could not be reversed from the company's system and meant a loss of rupees 19,000 for the dealership. The executive was very sorry and was ready to take accountability. However, the amount was too large to be borne by the executive. Shyam was not concerned about placing accountability, but rather the recovery of the loss. He was unsure whether he should ask Vinita for the money or not. Point समझ में आया? Okay. तो कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा प्रॉमिस कर दिया, तो 19,000 रुपीज का एक बर्डन आ गया डीलरशिप पर।
तो श्याम इज कंसिडरिंग क्या मैं विनीता से वो पैसा वापस से लूं या ना लूं. ओके, तो यस स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी व्हिच इज द बेस्ट आंसर. Shyam is aware that Vinita is very happy with the deal he gave her for the car. And Shyam feels that Diplomatico's software system is complicated for new employees. चलिए सारे स्टूडेंट्स बताओ. So which of the following combinations of the above pieces of information will most likely stop Shyam from trying to recover the money from Vinita? ध्यान रखना, डिसीजन ऑलरेडी दिया जा चुका है कि श्याम शुड नॉट रिकवर द मनी फ्रॉम विनीता. ओके, अब इन ऑप्शंस में से बताओ कौन सा ऑप्शन इसे जस्टिफाई करता है. मोस्ट लाइकली स्टॉप श्याम. स्टूडेंट्स, व्हिच इज द बेस्ट आंसर हियर? यस, कम ऑन. अब ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स समझने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है. अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज नॉट सो टफ. क्या लगता है स्टूडेंट्स, व्हिच इज द बेस्ट आंसर? यस, चलो, आई सी सो मेनी स्टूडेंट्स गिविंग द आंसर और सभी का आंसर एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर हियर हैपेंस टू बी बी. बिल्कुल सही. कुछ बच्चों का आंसर ए भी है, बट स्टिल द बेटर आंसर इज बी. चलो, कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, व्हेन आई से बी, सो देयर आर टू ऑप्शंस, सी एंड डी. सी सेज विनीता हैज अ वाइड नेटवर्क and can connect Shyam with many potential customers. Definitely. अब अगर वो श्याम विनीता से पैसा रिकवर करेगा तो डेफिनेटली वो जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं पॉसिबली ही में लूज. एंड ये कहता है स्टूडेंट श्याम फील्स दैट इफ ही मेंटेन्स द करंट सेल्स वॉल्यूम he might be able to persuade Diplomatico to write off the amount ₹19,000. तो इसका मतलब है श्याम शुड फोकस ऑन आपके मेंटेनिंग द सेम सेल्स लेवल. और अच्छा लेवल अभी चल रहा है, तो मुझे लगता है या शाम को लगता है कि पॉसिबली कंपनी 19,000 रुपीज राइट ऑफ कर दे. ओके, एंड उसी को मतलब द डीलर विल नॉट हैव टू बेयर द मनी एंड द कंपनी विल बेयर द मनी. तो श्याम फील्स दैट. तो इवन फिफ्थ पॉइंट ई motivates Shyam to not recover the money from Vinita. Absolutely B becomes the correct answer. जिन बच्चों का आंसर A है तो उसमें D एक अलग पॉइंट है. Vinita's brother, a car enthusiast, has enough knowledge of how car dealers operate. Makes no sense. Not at all possible. Anyway, students, the best answer is B. चलिए, coming on students, the ultimate question of the day, and this becomes the last question. Come on, your time starts now. कमिंग, यस प्लीज बताओ स्टूडेंट्स, 5 ऑप्शंस में से क्या आंसर होगा? Yes, come on. So which of the following is the most compelling rationale for Vinita to justify not paying rupees 19,000 to Shyam? So which is the best answer, students? Okay. चलो, I see students giving fifth as the answer. Yes, कशिश का क्वेश्चन क्या है? जब पर E is a lot of work for इससे अच्छा पैसा वापस.
ना मांग ले। नहीं कशिश, पैसा लास्ट क्वेश्चन में वापस नहीं मांगना चाहिए, रादर बिकॉज देखो विनीता का सर्कल बहुत बड़ा है, आई थिंक लॉन्गर बेनिफिट्स के बारे में सोचना चाहिए रादर देन जस्ट 19,000। ओके यस, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स व्हिच इज द बेस्ट आंसर, आई सी सो मेनी स्टूडेंट्स गिविंग वैरायटीज ऑफ आंसर्स, इसका मतलब है यूनानिमस आंसर इज नॉट देयर, तो दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी क्वाइट कंफ्यूजिंग। अब स्टूडेंट्स हमें वो ऑप्शन मार्क करना है जो कि कंपेल करे, कंपेलिंग रैशनल फॉर विनीता टू जस्टिफाई नॉट पेइंग। विनीता डिसाइडेड कि भाई मैं तो अब पे तो नहीं करूंगी, हालांकि गलती से जुड़ गया दिस दैट, बट अब विनीता को कौन सा ऑप्शन जस्टिफाई करता है कि भाई तुम्हारा पेमेंट नहीं करना इज जस्टिफाइड। कमिंग ऑन फर्स्ट, श्याम वुड हैव कम बैक टू हर इफ ही हैड नीडेड द मनी। ओके नॉट एट ऑल, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकता। सेकेंड, the mistake happened 3 months back and is water under the bridge now. Students even makes no sense. भाई 3 महीने पहले हुई, बट अगर तुम्हें पता चला तो at least on ethical grounds you can consider paying it. But anyway students, B cannot be the correct answer. ये कहना कि 3 महीने पहले हुआ इसीलिए it is not justified. और just imagine करो, okay, जिस समय कार परचेज की उस समय होते ही पता चल जाता तो क्या विनीता पे कर देती? Of course not. तो इसीलिए स्टूडेंट्स बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। पार्थ बी कैसे पॉसिबल होगा, हो ही नहीं सकता बी। चलिए कमिंग ऑन, शी पेड मोर फॉर द डिप्लोमेटिको एसयूवी कंपेयर टू द प्राइस ऑफ अ सिमिलर एसयूवी फ्रॉम पैंथर। चलो मान भी लेते हैं कि भाई डिप्लोमेटिको का प्राइस पैंथर की एसयूवी से ज्यादा था, बट डज इट जस्टिफाई दैट कि वो 19,000 जो गलती से जुड़ा है, यू कीप टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ दैट। ओके भाई ठीक है, आपकी प्राइस महंगी थी, बट दैट डज नॉट जस्टिफाई कि दैट 19,000 एक्स्ट्रा आई गेट एंड दैट टू बिकॉज ऑफ सम एरर ओके इन द सिस्टम एंड ऑल। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स ठीक है, कुछ हद तक सी हो सकता है, बट फिर भी सी बहुत कन्विंसिंग आई डोंट फील सो। यस, कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, डी had the accident not happened, she would not have been aware of the warranty. That is not the point at all. भाई अगर पता ही नहीं चलता तो ये मान लो कि मुझे पता ही नहीं चला, अरे अब तो पता चल गया ना, आप डिसाइड करो ना क्या करना है। तो ये कहना कि एक्सीडेंट नहीं होता तो पता ही नहीं चलता, अरे पता चल गया ना, तो नाउ यू से व्हाट हैज टू बी डन। तो जिन बच्चों का आंसर डी है, इवन दैट इज नॉट करेक्ट। द बेस्ट आंसर हियर इज फिफ्थ ऑप्शन, शी इज अवेयर दैट फॉर एक्सपेंसिव एसयूवीज लाइक हर्स डीलर्स ऑफन ऑफर फ्री एक्सटेंडेड वारंटी। तो ऐसी महंगी एसयूवीज के लिए डीलर्स कई बार ये एक्सटेंडेड वारंटी दे ऑफर। तो माना कि इस केस में वो गलती से जुड़ गया, बट वैसे भी डीलर्स बहुत सारे लोगों को ऑफर करते रहते हैं, तो चलो मुझे ऑफर नहीं किया, गलती से जुड़ गया, एंड नाउ दे से कि इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम द डीलर, सो व्हाट। एंड एनीवे विनीता हैड बीन अ कस्टमर विद दिस डीलर फॉर अ लॉन्ग व्हाइल नाउ। हैचबैक कार की भी उसी की थी, एसयूवी भी उसी की है, और डीलर्स इस तरह की वारंटीज देते रहते हैं, तो गलती से ही दे दी, सो व्हाट। तो कम से कम फिफ्थ ऑप्शन जस्टिफाई करता है, यही मान लो कि आपने ये ऑफर हमें भी दे दिया, दैट इज द पॉइंट। ओके चलिए, सो ऑल द स्टूडेंट्स आई विल गो विद फिफ्थ एज द करेक्ट आंसर। ओके, फिफ्थ एज द करेक्ट आंसर। ए इज नॉट करेक्ट। ये कहना कि श्याम वुड हैव कम बैक टू हर इफ ही हैड नीडेड द मनी, आई डोंट थिंक सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज ये कहना कि श्याम आए नहीं मांगने तो मैं क्यों दूं, अंडरस्टैंड। अरे आपको एथिकल ग्राउंड्स पे भी तो सोचना है और आपको जस्टिफाई करना है कि आपका नहीं देना, यू विल हैव टू जस्टिफाई। ओके, वंस यू कम टू नो दैट यस दिस इज समथिंग व्हिच हैज हैपेंड, और श्याम पॉसिबली आउट ऑफ शाइनर्स, पॉसिबली आउट ऑफ कॉमर्शियल कंपल्शन उन्होंने मांगा नहीं, बट एज अ पर्सन व्हाट आर यू सपोज टू डू। इसीलिए श्याम ने नहीं मांगा इज नॉट अ जस्टिफाइड आंसर। Okay students, so this was the end of the show today, and yes, by this the session gets over and ये पूरी आंसर की, and finally students thank you। तो yes, इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप करते चलो, and I believe that decision making में students आंसर्स एक्यूरेसी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन की जा सकती है। तो 21 क्वेश्चंस पॉसिबली 30-35 मिनट्स में you people can manage solving these 21 questions and you can take a very good score. You can get a very good score as far as the section is concerned. Okay. Tomorrow we are going to meet for verbal ability and logical reasoning for XAT. So students, एक ही section है VLR. So tomorrow we are going to take
questions of VALR targeting XAT 2025. So thank you very much. See you soon. Bye-bye for now. Thank you so much. Thanks, Aishwarya. Thanks, Dhanraj. Okay, most welcome. Yes, done. Thank you so much. Yes. Bye, Devyansh.